मच सर आपके इतना अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे वो इन ज़रूर गाइडेंस जो आप दे रही हैं वो ज़रूर अवेल करेंगे। यहाँ पे मैं दावत देना चाहूँगी हमारी वो रोल मॉडल एसी खानपुर डॉक्टर तस्नीम को कि प्लीज़ आए और अपने कुछ गोल्डन वर्ड्स जो है हमारे साथ शेयर करें। भरपूर तालियां बजाइए, भरपूर उनको हौसला दीजिए हमें। लास्ट स्पीकर मेरे लिए ये बड़ा अच्छा हो गया कि काफ़ी बातें कवर हो चुकी हैं। आई ऑल्सो सी कि आप लोग काफ़ी देर से बैठ रहे हैं, तो काफ़ी थक चुके हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि वो बातें ना रिपीट करूँ जो हो चुकी हैं। मेरी CSS जर्नी इस तरह है कि मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मेरी से पढ़ी, उसके बाद गिलेट गई और मैं SSC। तब तक कोई नहीं इस तरह था कि CSS करना है। आई वेंट टू डेंटल स्कूल विच इज़ अगेन डेंटल करने का, तो मैं इंजीनियरिंग से, तो मैं बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड फील्ड से आ रही थी। आई वॉज अ डेंटिस्ट and while I was doing my house job I decided that because हमारा dental का ये होता है कि we working from 8 to 2, so now after 2 you have the option कि आपको clinic कर लें, कोई FCS की तैयारी शुरू कर लें। So I was like let's give CSS, and 6 months towards the end of my house job I decided कि let's give an attempt. My parents sat me down because we have CSPs in the family, and they were like if you want to give this you have to be very serious about it. So if you don't want to be serious about it मत करो. And that was the moment when I reflected, what am I in it for? Which is something that has been discussed. And I said that ठीक है, एक attempt देंगे, with my job देंगे, लेकिन I'll give it my best shot. And बाकी it worked out beautifully in the sense that I ended up securing 3rd position all over Pakistan in CSS 2020, and here I am serving as AC Kanpur in front of you. Now coming to what I want you to learn from my journey and journey. एक बात AC हरिपुर अभी करके गए हैं, आई थिंक दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट कि वाई आर यू इन इट, आपने ये करना क्यों है। सो 4-5 चीज़ें जो मैं ज़रा जल्दी रैप अप करूँगी। पहली चीज़ ये है कि यू नीड टू सिट डाउन एंड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई डू आई वांट टू गिव CSS, what do I hope out of it। एंड उसमें भी आपके पास सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, when we classify motivation we do it in 2 things, is it external or is it internal। When you're externally motivated, you're doing it because of external factors. What are external factors? My parents would be proud if I am a CSP. Protocol होएगा, लोग कहेंगे बड़ी वाह होएगी. That's external. When something's coming from within, चाहे वो जो भी हो, they can be materialistic, they can be very noble, they can be to serve humanity in general and public at large, जो भी हो. But when it's coming from within, that's internal motivation. And there are multiple studies and researches which back this fact that when you're internally motivated, that is when you perform your best. So you have to search for the right reasons to start. Once you've started, फिर आपका पास आता है जी technical aspect, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि 12 subjects हैं, 6 compulsory हैं, 6 optional हैं, 6 optional के लिए further groupings हैं, उसमें से कौन सा scoring है, कौन सा scoring नहीं है, किस combination को pick करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारा technical aspect है। Again उसके ऊपर पूरा session किया जा सकता है, very lengthy, can be discussed multiple times. That is your second aspect. The third important part is your English. It is very important because Islamiyat के अलावा कि कोई भी subject ऐसा नहीं है जो कि आप किसी और language में other than the languages themselves आप attempt कर सकते हैं. So आपकी English में delivery किस तरह की, in the sense not as how you speak but how you write, your written expression. That is very important. Once you have that, then you work on knowledge. जो आपने 12 सब्जेक्ट्स लिए हैं, आपने उनका नॉलेज स्किल अपना पॉलिश करना है। जो भी सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल हैं, दूसरे हैं, आपने उनके ऊपर फोकस करना है कि यू गेट द रेलेवेंट डिटेल्स फॉर दैट। अगेन उसमें भी यू कैन हैव के सोर्सेज कौन से कंसल्ट करने हैं, सारी चीज़ अगेन वेरी लेंथी, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। एंड देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट योर रिटन प्रैक्टिस। मैंने बहुत लोग देखे हैं और ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ये चीज़ फ़र्क डालती है कि आपकी रिटन प्रैक्टिस कितनी है, क्योंकि अभी भी CSS ऐसे ही हो रहा है कि you have 6 days and 12 exams. So 9 to 12 you're writing one paper and 2 to 5 you're writing another paper. So 6 hours of continuous written strain with your mind thinking and your hand writing it, that is what you're going through, and not for one day. एक चीज़ होती है आपके पास continuous strain पड़ता है, जब आप ये चीज़ 6 दिन करेंगे, अगर आपकी पहले इसमें प्रैक्टिस नहीं है, so second day, third day, burnout will kick in, you will be like मेरे से नहीं हो रहा। किसी एक पेपर के बीच में जाके your hand will stop moving,
आप अपनी पेस मिस करेंगे. Like sir said that you have 35 minutes for a written question, 20 marks का. 35 मिनट में आपने दरिया को दूसरे में बंद करना है. अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. एंड ये वो चीज़ है जो कि आई थिंक फर्क डालती है उन कैंडिडेट्स में जो टू मेक इट एंड दोज हू डोंट. बिकॉज कुछ लोग होते हैं किताबें पकड़ के पढ़ना शुरू करते हैं. आप पढ़ना शुरू करें इस टॉपिक को तो देयर इज नो एंड. देयर इज जनरली नो एंड. Because we have internet, we have resources that can go up to extreme depths. You don't know where to stop. आप पढ़ते जाते, ठीक है आपने पढ़ लिया. How much can you reproduce? How much can you reproduce on the day of the exam? And then lastly, one thing which is very very important, that is luck. I think हम जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं कोई भी नहीं कह सकता कि जब मैंने पेपर दे दिया था, मैंने कहा था 100% मेरा हो जाएगा. Luck is a huge factor. And ये बात सच है कि हमसे बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सके. ये लक है, ये खुदा है, अल्लाह है. इसके ऊपर आप यू हैव टू कम टू एन एक्सेप्टेंस के नहीं हुआ क्योंकि नहीं होना था. बट दैट इज जब आपने अपनी पिछले वाली सारी चीज़ें की हैं. सो आई थिंक दैट्स द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस. बाकी इंसानों में वी कैन हैव डिटेल सेशंस व्हेनेवर इट्स कन्वीनियंट. बट आई वुड लाइक टू लिमिट इट टू दिस बिकॉज अगर आप इस 5 चीज़ों को समझ जाएं तो आई थिंक आपकी ये जो पूरी दौड़ है CSS की वो बहुत आसान हो जाती है. अदर देन दैट आई वुड लाइक अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं इसमें फोकस करूँ rather than taking so much time and repeating anything that's been said by very learned speakers before me. Thank you so much.